Assalamu alaikum. Today again we will discuss the amplifier circuits, that is the bipolar use of the bipolar junction transistor as an amplifier in a slightly different manner. Well, in the last lecture, that is lecture number 22, we discussed the small signal analysis of the amplifier circuit, and we shall continue from there to further the topic of amplifiers and discuss the operation of the amplifier in terms of the hybrid models, and we will discuss two models, that is the hybrid pi model and the hybrid T model. Okay, so let's go back again and revise what we did in the last lecture, that is the analysis of the small signal in the amplifier circuit. And today's topic is separating the signal and the DC quantities, and as usual, like last lecture, I have chosen Cedra Smith book for this lecture, and I have quoted the reference for your convenience. Now I would like to start with the analysis of amplifier signal biasing circuit. As we said in the last lecture, that in a given amplifier we have two types of biasing, the DC bias as well as the superposition of the AC signal. Now in a simple bipolar junction transistor, we have to bias the transistor, that is we use DC biasing in order for the current to flow, that is in order for the majority and minority carriers to flow across the junction. Majority would flow under the influence of diffusion current, and because of the biasing, different mechanisms take place for diffusion as well as for drift. In an ordinary operation, that is in a simple operation of the transistor, we bias the transistor such that the emitter base junction is forward bias and the base collector junction is reverse bias. That's the simple principle of transistor operation. Now, as I mentioned so many times in different lectures before, that if we want to convert or design an amplifier circuit utilizing the bipolar junction transistor, then we superimpose an AC component of the AC signal component as well, besides the DC operation. So besides the DC biasing. Now DC biasing is essential for the operation of the transistor, as I just explained. So AC signal is in addition to the DC voltage that we use for biasing the circuit. And that is why I have selected this topic, that in analyzing the circuit operation, that is the amplifier circuit operation, which contains both the DC as well as the AC components, we would start with separating the DC component from the AC, and then later on, after we have established or calculated or determined the DC parameters, then we could go on to calculating the AC parameter, and hence in such a way we will understand the analysis of an amplifier circuit which contains both the AC as well as the DC biasing in a given circuit. So I will begin with a very simple circuit diagram shown in this slide number 5. This is a typical amplifier circuit diagram, and you could see that I have shown both the biases, the DC with the symbol VBB and the AC with the symbol VI input AC signal. And I have used a resistor RB, as I explained in my lecture number 22, the previous lecture, that RB safeguards the damaging of the transistor, because if for some reason a large current flows through the base circuit, a very large current would therefore flow across the output circuit, and if it gets beyond the limit of the power dissipation, we might end up damaging the device. तो इसलिए RB जो है इसका सर्किट में डालना जो है वो आपके ऑपरेशन को में ज़्यादा करंट फ्लो को कंट्रोल कर लेता है. फिर साथ में मैंने इमिटर बेस जंक्शन यानी डायोड फॉरवर्ड बायस डायोड की जो वोल्टेज ड्रॉप है VBE वो भी दिखाई है बिटवीन द बेस एंड इमिटर टर्मिनल, और इसी तरह मैंने कॉमन इमिटर डायोड में यानी C और E इमिटर और कलेक्टर के दरमियान जो वोल्टेज ड्रॉप है VCE उसको भी इंडिकेट किया है. आप देख रहे होंगे
कि ये चीज़ मैं बार बार आपको रिपीट करती हूँ कि आई नॉर्मली चूज़ द NPN ट्रांजिस्टर फॉर माई एज एन एग्जाम्पल. अगेन टू रिपीट, क्यों NPN? बिकॉज इमीटर में अगर मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा होती है बनिस्बत होल्स के. देयरफॉर आई चूज़ NPN ट्रांजिस्टर. I have chosen NPN transistor in this slide number 5. बिल्कुल एंड में लेक्चर के मैं आपको बताऊंगी कि PNP ट्रांजिस्टर्स के लिए भी मोर लेस वही प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन और इसी तरह की ट्रीटमेंट होती है. ऑफ कोर्स विद द डिफरेंस इन द करंट कंपोनेंट्स, वो फिर उस लिहाज से लेबल होंगे. तो आपको इस पर्टिकुलर स्लाइड में मैं फिर से रिपीट कर दूं, 3 चीज़ें आप अप्रिशिएट कर सकते हैं. दैट दिस इज़ एन NPN. The amplifier has been designed using an NPN transistor. It has been biased in the common emitter configuration, जो आप देख सकते हैं क्योंकि मैंने emitter को ground किया हुआ है, so it is a common emitter configuration. And thirdly, because it is an amplifier circuit, so I'm using 2 biases. The DC voltage जो कि आपके ट्रांजिस्टर को एट ऑल टाइम्स फॉरवर्ड एक्टिव रीजन में रखती है, फॉरवर्ड बाइस्ड करती है आपके ट्रांजिस्टर को, एंड ट्रांजिस्टर ऑपरेट्स इन द एक्टिव रीजन ऑफ इट्स ऑपरेशन. और AC बाइस वो सिग्नल है जिसको हम एम्पलीफाई करके देखना चाह रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें मैंने बहुत क्लियरली इसमें आपको इस स्लाइड में आपको रिप्रेजेंट कर दी हैं. देन आई पोज द क्वेश्चन, व्हाट स्टेप्स आर टू बी टेकन टू एनालाइज an amplifier circuit of this type shown in slide 5, which contains both the DC as well as AC sources of voltage. तो अब मैं आगे आपको बताती हूँ कि कैसे हम एनालाइज करते हैं. अब ये उसी सर्किट की, ये देखिए, ये एक जर्नल नेचर का सर्किट है जिसमें मैंने सिर्फ सिंबल्स दिखाए हैं, उनकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं चूज़ की. अगले सर्किट में मैं आपको ये वैल्यू मैंने लिख दी हैं जो कि हम आगे चल के किसी एक्सरसाइज में भी यूटिलाइज कर सकते हैं. आई हैव गिवन द वैल्यू ऑफ द RB, चोजन सम अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस RB, लेट्स से 50 किलो ओम, एंड देन इसी तरह RC और बायसेस की वोल्टेजेस भी मैंने सिलेक्ट करके आपको बता दी हैं. एम्पलीफायर सर्किट एनालिसिस में ज़ाहिर है हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं कि इनपुट सर्किट में जब आप DC बायस करते हैं तो Q पॉइंट जो हम निकालते हैं उसमें आपके DC-IB करंट, जैसे कल के लेक्चर में मैंने बहुत क्लियरली बताया था, DC-IB, DC-IC ये दोनों करंट वैल्यूज़ हैं इनपुट सर्कल में. IB इनपुट सर्किट में इनपुट लूप की करंट है, एंड IC आउटपुट लूप की करंट है, एंड देन VBE एंड VCE आपकी वोल्टेजेस हैं. तो इन वोल्टेजेस को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं. वी वांट टू डिटरमिन दीज वैल्यूज फर्स्ट फॉर द एनालिसिस ऑफ द एम्पलीफायर सर्किट. वी वुड लाइक टू नो व्हाट इज द कलेक्टर करंट IT इन द आउटपुट सर्किट, एंड then we would also like to know the collector emitter voltage again, which is in the output circuit, which is VCE. and इन दोनों चीज़ों को निकालने के लिए जाहिर है ये आप आउटपुट लूप यानी कलेक्टर इमिटर जंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं. जाहिर है आउटपुट सर्किट की प्रॉपर्टीज़ को कौन कंट्रोल कर रहा है? आउटपुट करंट IC एंड VCE करंट, एज वी मेंशन बिफोर, आर कंट्रोल्ड बाय द पैरामीटर्स ऑफ द इनपुट लूप. तो इनपुट लूप में क्या चीज़ होती है? IB और VBE. तो यही चीज़ मैंने लिखी है कि अगर आपको किसी ट्रांजिस्टर में, किसी एम्पलीफायर सर्किट में आपको आउटपुट IC देखनी है तो न सिर्फ उसका एम्पलीट्यूड, न सिर्फ AC सिग्नल का एम्पलीट्यूड, बस बल्कि उसका फेज भी देखने के लिए आपको ज़ाहिर है 2 बेसिक क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है. IC दी कलेक्टर करंट एंड VCE दी कलेक्टर एमिटर वोल्टेज. और ये कहाँ से कंट्रोल हो रही हैं? ये कंट्रोल हो रही हैं इनपुट लूप की बेस करंट IB और बेस एमिटर वोल्टेज VBE. तो यही 2 चीज़ें हमें चाहिए होंगी. टू गेट दिस वी नीड टू फाइंड दी बेस करंट IB एंड द बेस एमिटर वोल्टेज VBE. तो ये 2 चीज़ें हमें निकालनी होंगी एम्पलीफायर सर्किट के सिग्नल एनालिसिस के लिए. तो ये कैसे करते हैं ये हम बहुत से लेक्चर्स में रिपीट कर चुके हैं. तो लेट मी रीइटरेट अगेन फॉर द सेक ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ द टॉपिक कि लेट्स स्टार्ट विद द आउटपुट लूप, क्योंकि हम आउटपुट लूप में ये चीज़ें कैलकुलेट करना चाह रहे हैं. तो आउटपुट लूप में आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ लिखिए
और जैसे कल मैंने आपको बताया था कि अब हम एक एसी सिग्नल से डील कर रहे हैं, और ये एसी सिग्नल ऐसा है कि जिसमें सुपरपोजिशन हो रही है एसी कंपोनेंट की, जो आपने सर्किट में कनेक्ट किया ऑन टॉप ऑफ द डीसी बायस जो हमने ट्रांजिस्टर की ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल की थी। तो इसीलिए मैंने टाइम वेरिंग फैक्टर T भी लिखा है। तो VCC, दैट इज द टोटल करंट दैट यू गेट इन द आउटपुट सर्किट, नाउ इज अ सम ऑफ द करंट, एंड करंट की नेचर आपकी कैसी है, टाइम वेरिंग करंट, विच रिप्रेजेंट्स द सेम फॉर्म एज द इनपुट सिग्नल। सिर्फ फ़र्क किस में होगा, आपके मैग्नीट्यूड में फ़र्क होगा, और वोल्टेज में, आपके वोल्टेज में फेज़ का भी फ़र्क आ सकता है। तो ICR जो है, दैट इज़ द अमाउंट ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप दैट यू गेट अक्रॉस द load resistance RC, and the remaining part is the voltage drop across the collector emitter diode, that is the collector emitter junction। तो ये आपकी टोटल वोल्टेज की इक्वेशन है जो हम हर ट्रांजिस्टर या हर ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन में लिखते हैं, सिंपल ट्रांजिस्टर इक्वेशन यूजिंग द किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ वोल्टेज इक्वेशन। सो वी कैन कैलकुलेट दैट, एंड देन after that we can move on further and say that now that we know how to represent mathematically a voltage equation and a current equation for an amplifier circuit containing both the AC as well as the DC components, then we would like to move on and see how we can separate the DC from the AC and how we can separate the AC from the DC so that we understand the amplifier analysis in a better way. To do so, what we do is first we understand about the superposition of the signal itself. क्यों? जैसे मैंने अभी बताया कि आपके दोनों कंपोनेंट्स मौजूद हैं, डीसी सिग्नल भी मौजूद है, डीसी बायस भी मौजूद है ट्रांजिस्टर को हर वक्त एट ऑल स्टेजेस एक्टिव मोड में रखने के लिए, और एसी सोर्स हमने लगाया है ताकि आप बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर से एम्पलीफायर सर्किट को डिज़ाइन कर सकें। तो इन दोनों चीज़ों को, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था, इन माय लेक्चर नंबर 22 आई डिस्कस्ड दिस इन डिटेल, कि आप इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, एडिशन करते हैं, सुपरपोजिशन, इसलिए मैंने टॉपिक का हेडिंग लिखी है कि हम AC कंपोनेंट, AC करंट कंपोनेंट एंड द DC करंट कंपोनेंट को टोटल करके आप इस तरह टोटल करंट कंपोनेंट निकाल लेते हैं आउटपुट सर्किट में। बट माइंड यू, लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द सिंबल्स and nomenclature that we use to identify the DC, pure DC parameters and the pure AC parameter, and then the superposition of both of them, that is the total values of the current and the total values of the total AC current and the total DC values. So we use the superposition phenomenon, calculate the parameters for each separately and add up the results. First we do the DC analysis to calculate the DC, that is the Q point. ये कल भी हमने डिस्कस किया था कि हम Q point से आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ट्रांजिस्टर की ड्रॉ करें, उस पर लोड लाइन ड्रॉ करें, और फिर Q point से हम DC पैरामीटर्स नेमली IB, IC एंड VCE निकाल लेते हैं। इसके लिए हमें शॉर्ट सर्किट यानी AC वोल्टेजेस सोर्सेज, यानी इसके लिए हमें सपोजिशन क्या करनी पड़ती है DC एनालिसिस के लिए, क्योंकि जाहिर है हमारे सर्किट में AC कंपोनेंट भी शामिल है, AC सिग्नल भी शामिल है और DC सिग्नल भी शामिल है। तो प्योर DC वैल्यूज़ यानी Q पॉइंट वैल्यूज़ निकालने के लिए है, हम अस्यूम करते हैं कि हमने AC सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया। सो दैट इज़ माई फर्स्ट स्टेप, short circuit any AC voltages, any AC voltage sources, so that we can perform only the DC analysis to obtain the Q point, and then open circuit any AC current sources. तो फिर उसके बाद हम DC पैरामीटर निकालने के बाद एक दफ़ा आप DC एनालिसिस से अगर IB, IC और VCE निकाल लें, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट हम मूव कर जाएंगे कि अब हम एम्पलीफायर सर्किट में सिर्फ AC सर्किट के एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, ताकि हम
एम्पलीफायर का गेन कैलकुलेट कर सकें। तो उसके लिए हम दो मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ द ग्राफिकल मेथड एज वेल एज द इक्विवेलेंट सर्किट मेथड फॉर स्मॉल एसी सिग्नल ऑपरेशन। ये दोनों टेक्निक्स जो थी हमने लेक्चर नंबर 22 में भी बड़ी डिटेल में डिस्कस की हैं। सो दैट्स हाउ वी कैन सेपरेट द एसी सिग्नल फ्रॉम द डीसी component in an amplifier circuit which contains both the DC as well as the AC voltage sources. This particular slide happens to be a very useful slide in any amplifier circuit designed by using the bipolar junction transistor. तो इसमें मैंने हेडिंग दी है कि ये एक बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर से एम्पलीफायर सर्किट मैंने डिज़ाइन किया है। The circuit on your left which is labeled A, circuit A जो है वो वही आपका सर्किट है जो मैंने अभी बिगिनिंग ऑफ द स्लाइड में इंट्रोडक्टरी रिमार्क में आपको दिखाया था। और राइट पे आपको जो सर्किट नज़र आ रहा है डायग्राम B या सर्किट B, ये मैंने इसको इक्विवेलेंट DC मॉडल में कन्वर्ट कर लिया है। सो द सर्किट ऑफ A विद द सिग्नल सोर्स VBE eliminated, that is short circuited। अब सर्किट ए को मैंने शॉर्ट सर्किट करके एसी सिग्नल को ज़ीरो करके यानी एलिमिनेट करके या शॉर्ट सर्किट करके मैंने रिड्यूस कर दिया है ए के सर्किट को इनटू सर्किट बी। और आप देख सकते हैं कि सर्किट बी में मैंने कोई एसी सिग्नल नहीं दिखाया। नाउ दिस सर्किट बी विल फर्दर बी यूटिलाइज्ड फॉर आवर डीसी एनालिसिस इन दिस लेक्चर। तो मैंने क्या लिखा है, इन ए बाइपोलर जंक्शन एम्पलीफायर सर्किट एवरी करंट AC as well as DC is composed of two components. Every current and voltage is composed of two components, a DC component and an AC signal component. So we can write a summation for both of them. That is the voltage, total voltage when the AC signal is present in a bipolar junction transistor, therefore would be a sum of numerical sum of the AC component as well as the DC component। और आप देख सकते हैं कि जो कैपिटल लेटर्स में है that is the DC voltage biasing the input loop between base and emitter, और small letters में जो voltage मैंने लिखी है that's your AC voltage only। और दोनों का सम जो है वो लेफ्ट साइड पे है इक्वेशन की, that is the total voltage that is connected, that is present in your input loop of the amplifier circuit। इसी तरह चूँकि जैसे वोल्टेजेस दोनों कंपोनेंट्स का समेशन है, उसी तरह आपकी टोटल करंट भी दोनों करंट कंपोनेंट्स की सम है। एंड देयरफॉर the equation in blue represents both your AC current which is small I and small c and the capital letters वाली यानी upper case वाली आपकी pure DC current है। So DC current plus the AC current will give you the total current obtained in the output loop of an amplifier circuit। And when I say amplifier circuit, I mean that in the input loop you have used both the DC as well as the AC sources। तो अब DC एनालिसिस के लिए that is my first step in separating the EC in performing the analysis of the amplifier circuit। तो फर्स्ट स्टेप मेरा क्या है कि मैं AC प्लस DC की जहाँ सुपरपोजिशन हो रही है उनमें से दोनों को one at a time separate करूं। So first I perform the DC analysis on the amplifier circuit, and what is the condition for doing so? The condition is that we put all the AC signal voltages equal to 0, which also amounts to saying let's short the AC signal। The DC components are determined from the DC circuit, और वो DC circuit जो मैंने अभी आपको reduce करके दिखाया था equivalent, ये आपके डायग्राम बी में सर्किट बी में राइट हैंड साइड ऑफ दिस स्लाइड में जो आपको सर्किट नज़र आ रहा है दैट इज़ प्रिसाइसली द सर्किट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये वो सर्किट है इक्वेशन 5.48b एंड शोन इज ऑल्सो शोन इन द नेक्स्ट स्लाइड। आई हैव reproduced the same circuit which will explain the DC operation of an amplifier circuit।
तो डीसी एनालिसिस में द डीसी बायस कंडीशंस इज बाय सेटिंग द सिग्नल VBE इज इक्वल टू 0। तो ये सर्किट है जिसको मैंने हाईलाइट किया है दोबारा, और कंडीशन मैंने टॉप पे लिख दी है कि डीसी एनालिसिस में जो हमारी प्राइमरी कंडीशन है दैट इज द सोर्स वोल्टेज शुड बी इक्वल टू 0 और लेस शॉर्ट द सोर्स सर्किट। तो दो तीन चीज़ों का हमें और ख्याल रखना होगा कि वी मेक श्योर दैट फॉर द बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर द करंट इक्वेशंस एंड द रीजन ऑफ ऑपरेशन मैच। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है जो मैंने शुरू में अभी बताया कि हम Q पॉइंट दैट इज़ द पैरामीटर फॉर द ऑपरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट वो IB, IC और VBE हैं। IC is calculated, is controlled by IC and by IB, and IB in turn is controlled by varying VBE। तो यही चीज़ें जो तीन हैं जो हमें जहन में रखनी है कि ये सारे पैरामीटर यानी Q वैल्यू आपकी values of IB, values of IC और VCE therefore should match your Q point such that it gives undistorted signal। तो हमें इस इक्विवेलेंट डीसी सर्किट में जो मैंने आपको राइट हैंड साइड पे दोबारा रिप्रोड्यूस किया है आपकी कन्वीनियंस के लिए, वो ये है कि VBE शुड बी ग्रेटर देन 0। क्यों ग्रेटर देन 0? कि जब हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर को बायस करते हैं, फॉरवर्ड बायस करते हैं, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वोल्टेज ड्रॉप टेक्स प्लेस अक्रॉस द फॉरवर्ड बायस्ड डायोड। और इनपुट लूप में अगर हम सिलिकॉन ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं तो इनपुट लूप में जो आपका एमिटर बेस्ड डायोड है उसके अक्रॉस 0.7 वोल्टेज ड्रॉप होगा। सो VBE शुड बी ग्रेटर देन दैट वैल्यू, अदरवाइज आपकी करंट विल नॉट टेक ऑफ, यानी करंट आपकी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करती है। ओनली द डायोड बिकम्स ऑन only when the voltage the bias applied DC bias is greater than the knee voltage of the emitter based junction। और VBC आपका लेस देन नेगेटिव होना चाहिए। तो उसी इक्वेशन को मैंने रिप्रोड्यूस कर दिया है, दैट इज द बेस वोल्टेज शुड बी ग्रेटर देन VE बट लेस देन द कलेक्टर वोल्टेज VC। ये एक जर्नल सा हमने इम्पोज कर दी हैं कंडीशंस, ताकि हम इक्वेशंस जो हमारा ट्रांजिस्टर को ऑपरेशन है दैट शुड बी विद इन द लीनियर रीजन ऑफ द आउटपुट करेक्ट ट्रांजिस्टर शुड ऑपरेट इन द लीनियर रीजन ऑफ द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक and we are performing the amplifying operation when the Q point does not swing too much। तो फिर हम अगले स्टेप में हम ये इंश्योर करते हैं कि चूँकि हमें डीसी एनालिसिस में डीसी सर्किट ऑपरेशन में एम्पलीफायर के अल्फा बीटा भी नोन है। बीटा इज़ द गेन फैक्टर विच इज़ द रेशियो ऑफ द कलेक्टर करंट एंड बेस करंट। चूँकि बीटा हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं बिकॉज आई एम परफॉर्मिंग I have designed the amplifier circuit in the common emitter configuration। Similarly मुझे अल्फा भी मालूम है, तो ये तीन DC रिलेशन DC करंट रिलेशन दैट इज़ IE, IB and IC के मैंने लिख दिए हैं in terms of alpha and beta। So this slide is kind of a reproduction of all that we have learned so far about the current and voltages in a given transistor, bipolar junction transistor। And these relations will be utilized later on in our discussion as we move along when we are analyzing the amplifier circuit, which has been designed by using a simple NPN transistor। Okay, so at this point we can write down, we can summarize what we have done about the DC analysis of a bipolar junction transistor, which is used for designing a simple amplifier circuit। So first we calculated, as I mentioned before, first the very first point, the very starting point is that we establish a good Q point. When I say good, we mean that the point, the Q point or the values of IB, IC and VC should be such that they give you an unclipped or undistorted waveform in the output circuit। So to calculate the Q point for the bipolar transistor is the first step in analyzing the circuit,
And to summarize what we have discussed in the last few slides, we can say that we ignore the AC variable source, that is short circuit the voltage source and open circuit any current source. तो आपके एम्पलीफायर सर्किट में AC सोर्स तो हमने लगाया हुआ है, वो इसलिए लगाया हुआ है कि एम्पलीफायर सर्किट को डिज़ाइन ही इस तरह किया जाता है कि ट्रांजिस्टर में दोनों DC सोर्स और AC सोर्स भी हों। लेकिन पहले DC यानी एम्पलीफायर को ऑपरेट करने से पहले हमें ये सोचना है कि हमें ऐसी वैल्यूज़ Q की चूज़ करनी है कि आपको जो आउटपुट सिग्नल मिले, आउटपुट लूप में जो वेव फॉर्म आपकी आए वो अनडिस्टॉर्टेड हो। तो उसके लिए आप पहले Q पॉइंट निकालते हैं। Q पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, Q पॉइंट से मुराद है DC पैरामीटर्स IB, IC एंड VCE। तो DC पैरामीटर को निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हम जो भी हमारा AC सोर्स लगा हुआ है इनपुट सर्किट में, उसके करंट सोर्सेज को हम ओपन सर्किट कर देते हैं और वोल्टेज एनी वोल्टेज सोर्सेज को हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। उसके बाद हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं बेस एमिटर सर्किट में, और यूजिंग द लोड लाइन एनालिसिस ऑन द बेस एमिटर कैरेक्टरिस्टिक वी कैन ऑब्टेन द Q पॉइंट। उसके बाद फिर हम when the Kirchhoff voltage law to the collector emitter circuit and using load line analysis on the collector emitter characteristic we obtain the collector current and the voltage Q point। तो आप DC forward biased सर्किट में IB वर्सेस VBE पे भी लोड लाइन ड्रॉ करके IB और VBE कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पर लोड लाइन ड्रॉ करके IC और VCE निकाल सकते हैं। सो बोथ दीज characteristic, that is the input characteristic, current IV characteristic in the input circuit and IV characteristic of the output characteristics, both give us the respective Q point। मैं रिस्पेक्टिव इसलिए कह रही हूँ कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक से इनपुट कैरेक्टरिस्टिक पर अगर आप लोड लाइन ड्रॉ करें तो वहाँ से आपको IB और VBE की वैल्यू मिलेगी। ये ग्राफ हमने कल के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 22 में डिस्कस किया था, तो आप वहाँ के 22 लेक्चर से इस स्लाइड को देख सकते हैं। अब आइए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पर। जब हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक यानी IV कैरेक्टरिस्टिक इन दी आउटपुट सर्किट में जब आप IC वर्सेस VCE की कर्व ड्रॉ करते हैं और फिर इसके ऊपर लोड लाइन ड्रॉ करते हैं तो उससे हमें IC और VCE मिलते हैं। तो दोनों Q पॉइंट्स, रिस्पेक्टिव Q पॉइंट्स आपको इनपुट एज वेल एज आउटपुट IV कैरेक्टरिस्टिक से मिल जाते हैं, और ये आपको कम्प्लीटली 4 वैल्यूज ऑफ DC पैरामीटर्स दे देते हैं जो कि ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन में इन द एक्टिव रीजन या लीनियर रीजन में आपको हेल्प करते हैं। तो ये Q पॉइंट इस्टेब्लिश करना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप इस Q पॉइंट यानी DC पैरामीटर्स पर सुपर इम्पोज करते हैं अपना AC सिग्नल, तो उस AC सिग्नल से फिर आपकी जो एम्पलीफाइड वोल्टेज आएगी, एम्पलीफाइड सिग्नल इन द आउटपुट सर्किट आएगा, वो फिर अनडिस्टॉर्टेड होगा। लेकिन एक और कंडीशन है स्मॉल सिग्नल एनालिसिस की, जो मैंने लेक्चर नंबर 22 में भी एक्सप्लेन की थी, दैट योर AC सिग्नल शुड बी अबाउट ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 मिलीवोल्ट्स, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा हाई सिग्नल लगाएंगे, हाई वैल्यू का सिग्नल लगाएंगे, तो हमारी स्मॉल सिग्नल अप्रॉक्सीमेशन जो है वो वैलिड नहीं रहेगी। एंड यू मे ऑल्सो द लार्ज amplifier gain may clip the circuit in the output waveform। तो न सिर्फ DC पैरामीटर बल्कि AC सिग्नल के एम्पलीट्यूड को भी हमें देखना होगा ताकि आपका आउटपुट सर्किट में अनक्लिप्ड अनडिस्टॉर्टेड वेवफॉर्म आए। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड, तो इस प्रोसेस को जो इस स्लाइड में मैंने एक्सप्लेन किया है कि दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड द DC एनालिसिस। और अब DC एनालिसिस के बाद जैसे मैंने अभी बताया कि एक दफ़ा जब आपके पास DC वैल्यूज़ आ गई तो फिर अब हम AC एनालिसिस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने समरी ऑफ जैसे पहले मैंने सम अप किया कि ये प्रोसेस को सम अप किया कि DC एनालिसिस में हमें क्या क्या स्टेप्स लेने होते हैं। लेट मी रिपीट वंस अगेन फॉर योर कन्वीनियंस, ताकि आपको और ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाए कि सर्किट तो हमारे पास एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर सर्किट का मतलब होता है दोनों DC भी मौजूद हैं और AC भी मौजूद हैं। तो जब हम एनालिसिस करने चलते हैं तो पहला स्टेप हम ये करते हैं कि लेट्स
assume that we want to do only the DC analysis in the first stage. तो उसके लिए आपको क्या करना है, AC सिग्नल तो मौजूद है, उस AC सिग्नल को आप शॉर्ट कर दें, अस्यूम करें इट इज़ इक्वल टू 0, फिर उससे आप ऑपरेटिंग पॉइंट निकाल लें इनपुट IV कैरेक्टरिस्टिक से भी और आउटपुट IV कैरेक्टरिस्टिक से भी, तो आपके पास तीनों DC वैल्यूज़ निकल आएंगी। और एंड में मैंने यही लिखा है कि दिस टाइप ऑफ एनालिसिस प्रोसीजर इज़ कॉल्ड द DC एनालिसिस ऑफ द एम्पलीफायर सर्किट। अब ये DC एनालिसिस करने के बाद नेचुरली लॉजिकल बात क्या है कि हम अब AC एनालिसिस करना चाहेंगे। तो यहाँ मैंने उन्हीं इक्वेशंस को दोबारा लिख दिया है जो कि हमें DC किसी भी ट्रांजिस्टर के DC एनालिसिस से मिलती हैं। AC एनालिसिस पे अब हम आ जाते हैं। तो जैसे हमने DC में किया था कि DC एनालिसिस के लिए आपने AC सिग्नल को शॉर्ट कर दिया था, 0 अस्यूम कर लिया था, एलिमिनेट कर दिया था, तो AC एनालिसिस के लिए हम DC के साथ वही करेंगे, यानी हमने DC सोर्सेस को एलिमिनेट कर दिया है। और याद रखिए हमने 2 DC बायसेस लगाई हुई हैं, एक इनपुट सर्किट में जो कि एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करती है, दूसरी आपने कलेक्टर एमिटर यानी आउटपुट लूप में लगाई हुई है जो कि आउटपुट लूप यो कलेक्टर एमिटर के दरमियान रिवर्स बायस किए हुए है ट्रांजिस्टर को। एमिटर दोनों में कॉमन आ जाता है। सो VBE इज द बायस, फॉरवर्ड बायस, VBE forward bias is the emitter base junction of the transistor. VCE reverse bias is the collector emitter junction of the amplifier transistor. तो अब हमने DC सोर्सेज को, दोनों DC सोर्सेज को इनपुट के भी और आउट के भी एलिमिनेट कर दिया है, यानी शॉर्ट सर्किट कर दिया है। A representation of the signal operation of the bipolar junction transistor can be obtained by eliminating the DC sources। और ये मैंने आपको पिछली सेड्रा स्मिथ की फिगर का ओरिजिनल नंबर कोट किया है, which is 55.50, and I have reproduced the same circuit in my next slide ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। लेकिन अगर आप ओरिजिनल टेक्स्ट बुक को तरफ रेफ़र करना चाहें तो आपको मैंने ओरिजिनल फिगर उस वॉल्यूम की जो मैंने यूज़ किया है आप देख सकते हैं। सो बेसिकली इट्स द चैप्टर 5। Observe that since the voltage of an ideal DC supply does not change, the signal voltage across it will be 0. For this reason we have replaced VCC and VBE with short circuits, and it had to be, had the circuit contained ideal DC current sources, these would have been replaced by an open circuits। तो ये एक कंडीशन हमने इम्पोज की है AC एनालिसिस के लिए कि let's short all the, let's eliminate, let's short all the DC voltages that are present in the circuit। तो लेट्स सी द सर्किट कि वो सर्किट को अब हम स्टडी करते हैं। ये अब आपका सर्किट है। तो आप देखिए इन कंट्रास्ट टू द वन दैट वी सॉ अर्लियर जहाँ आपको DC बायस सिर्फ नज़र आ रही थी, AC को हमने एलिमिनेट कर दिया था, नहीं दिखाया था। अब इस प्रेजेंट स्लाइड नंबर 18 में मैंने DC को शो नहीं किया है, ना इनपुट लूप में ना आउटपुट लूप में, सिर्फ आपको AC सिग्नल VBE नज़र आ रहा है। द एम्पलीफायर सर्किट विद द DC सोर्स VBE and VCC eliminated, short circuited, only the AC signal components are present। Of course bottom में आप ये देखिए कि this is only, ये एक conceptual representation है इस सर्किट की। ये जो स्लाइड 18 में जो आपको सर्किट नज़र आ रहा है, I would like to emphasize कि ये एक एम्पलीफायर सर्किट नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि एम्पलीफायर सर्किट में तो आपके DC सोर्स का होना एसेंशियल है, क्योंकि DC सोर्स ही है जो आपके इमिटर बेस जंक्शन को एट ऑल टाइम्स फॉरवर्ड बायस रखता है एंड एट ऑल टाइम्स ट्रांजिस्टर आपका एक्टिव रीजन में ऑपरेट कर रहा है। तो ये मत समझिए कि ये एक एम्पलीफायर सर्किट है। नो, दिस इज ओनली अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्चुअल एम्पलीफायर सर्किट फॉर द पर्पस ऑफ AC एनालिसिस ओनली। तो ये क्लियर कराने के बाद कि ये सर्किट हमने सिर्फ AC एनालिसिस के लिए अस्यूम किया है, इसे कंसेप्चुअल सर्किट मॉडल कि इसमें DC को हम अभी फ़िलहाल एलिमिनेट किए हुए हैं। तो आगे चल के देखते हैं कि अब हम कैसे करते हैं।
So this figure shows the expressions for the current increments. आपकी जो भी AC करंट्स हैं वो आपको नज़र आ रही हैं और साथ में आपको AC सिग्नल VBE भी नज़र आ रहा है। सिर्फ AC कंपोनेंट्स मैंने शो किए हुए हैं, क्योंकि DC को तो हमने फॉर द टाइम बीइंग एलिमिनेट किया हुआ है, क्योंकि इस वक्त हम सेकेंड स्टेप पे हैं AC एनालिसिस के। फर्स्ट स्टेप हमारा था कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द एम्पलीफायर सर्किट ऑपरेशन में। पहला स्टेप हमारा DC एनालिसिस था जो हमने कर लिया। अब हम इस वक्त AC एनालिसिस कर रहे हैं। तो मैं दोबारा वापस जाती हूँ फिगर 18 में। तो आप देखिए थ्रू आउट जो मैंने करंट कंपोनेंट्स दिखाए हुए हैं और इनके मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ ट्रांस कंडक्टेंस GM दिखाई हुई है, वो ओनली फॉर द AC करंट कंपोनेंट शो किए हैं। तो यही मैं लिख रही हूँ कि दैट द सर्किट एम्पलीफायर सर्किट ओनली with the AC components has been drawn, which is shown in slide 18, and the circuit of slide 18, which is figure 5.50, represents only the AC currents. These relationships can be represented by a circuit. Such a circuit could have three terminals: collector terminal, base terminal, and the emitter terminal, and should yield the same terminal currents as indicated in the circuit of slide 18. The resulting circuit is then equivalent to the transistor as far as small signal operation is concerned, and thus it can be considered an equivalent small signal circuit model. तो ये चीज़ मैंने पहले भी आपको वाज़े कर दी थी कि अब हमारे पास जो एम्पलीफायर सर्किट इस तरह कंसेप्चुअल, आई एम्फसाइज ऑन द वर्ड कंसेप्चुअल, कि जो हमने इस तरह अस्यूम किया है कि लेट्स एलिमिनेट द DC बायसेस फ्रॉम एम्पलीफायर सर्किट, जो कि एसेंशियल कंपोनेंट है एम्पलीफायर सर्किट डिज़ाइन का। जब आप ट्रांजिस्टर को यूज़ करते हैं एम्पलीफायर सर्किट डिज़ाइन करने में, तो DC को फॉर द टाइम बीइंग हमने शॉर्ट सर्किट किया हुआ है। तो लिहाजा वी कैन मेक दिस स्टेटमेंट विच आई डिड इन दी विद दी रेड लेटर्स कि इस सर्किट को स्लाइड नंबर 18 के हम इक्विवेलेंट, दिस सर्किट कैन बी called as an equivalent small signal circuit model. So this represents a small signal model. अब इसी स्लाइड को मैंने री-रिप्रेजेंट किया है, जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेनेशन दी कि चूँकि मैंने मॉडल का लफ्ज़ यूज़ किया था। ये देखिए, फॉर the resulting circuit is then equivalent to the transistor as far as small signal operation is concerned, and thus it can be considered an equivalent small signal circuit model. अब इस मॉडल की एक्सप्लेनेशन मैं फर्दर दे रही हूँ, द बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एज एन AC स्मॉल सिग्नल मॉडल। तो आपको जो ब्लू बॉक्स में नज़र आ रहा है, वहाँ आपको एक टोटल करंट नज़र आ रही है, AC करंट। VBE इंडिकेट्स, जैसे मैंने पहले आपको सिंबल या नॉमेनक्लेचर्स बताए थे कि अगर सबस्क्रिप्ट अपर केस हों यानी ब्लॉक लेटर्स हों, तो फिर कैपिटल लेटर्स हों, तो ये आपका टोटल AC सिग्नल रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर आपका एम्पलीफायर चूँकि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड है, तो बीटा टाइम्स एम्पलीफाई होके आपकी बेस करंट IB बीटा टाइम्स एम्पलीफाई होके आपको कलेक्टर करंट मिल जाती है। So I have shown in the blue box both the input VBE as well as the output voltages in a given amplifier circuit. अब इसको हम redesign करते हैं in the form of an equivalent small signal model. तो इस arrow से अब हम small signal equivalent model redraw करते हैं, जिसमें कि मैंने आपको सिर्फ AC voltages दिखाई हैं। अब आप दोबारा symbols को देखिए, मैंने सिंबल और नॉमेनक्लेचर पे बहुत दफ़ा एम्फसाइज किए। लेट्स गो बैक अगेन टू द ब्लू बॉक्स। तो वहाँ जो आपको सिग्नल नज़र आ रहा है, दैट्स द सम ऑफ द AC एज वेल एज DC। तो टोटल आपको बाइसिंग वोल्टेज दिखाइए। लेकिन जब मैं राइट हैंड साइड की डायग्राम में आती हूँ तो बोथ लोअर केसेस हैं। लोअर केसेस का मतलब है इस वक्त प्योर AC सिग्नल जो है वो इनपुट में दिखाया है, क्योंकि मैंने DC को इस वक्त ब्लॉक किया हुआ है, क्योंकि मैं इस वक्त AC ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ। हेंस द हेडिंग बाइपोलर ट्रांजिस्टर एज अ स्मॉल सिग्नल मॉडल।
और फिर उसी तरह आपका ट्रांजिस्टर की एम्प्लीफिकेशन हो रही है और तीनों टर्मिनल एमिटर बेस कलेक्टर पर मैंने करंट कंपोनेंट्स भी शो आपको किए हुए हैं। ये तीनों करंट कंपोनेंट्स दिखाने के बाद अब हम कहते हैं कि वी कैन क्रिएट एन इक्विवेलेंट सर्किट टू मॉडल द ट्रांजिस्टर फॉर स्मॉल सिग्नल्स। नोट दैट दिस इज ओनली अप्लाइज फॉर स्मॉल सिग्नल। जैसे मैंने शुरू में बताया कि VBE शुड बी लेस दैन दी थर्मल वोल्टेज VT। थर्मल वोल्टेज की आप थर्मल एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली 300 केल्विन पर आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो हम स्मॉल the word itself implies कि जो आप एम्पलीट्यूड इनपुट सिग्नल का AC सिग्नल का जो आप एम्पलीट्यूड लेते हैं उसको कम होना चाहिए, काफ़ी कम होना चाहिए। और जो हमने रेफरेंस लिया है दैट्स द थर्मल वोल्टेज VT एंड द टेम्परेचर हैज़ is chosen as the room temperature value। तो इसीलिए मैंने एक रफ फिगर आपको 10 मिलीवोल्ट की लेक्चर नंबर 22 में भी दी थी। तो by definition the amplitude of the input AC signal should be small और उसी को मैंने कंडीशन लिख दिया है। We can represent the small signal model for the transistor as a voltage controlled current source that is IE। अब आपकी करंट जो है इस ट्रांजिस्टर में इमिटर टर्मिनल पे आपकी इमिटर करंट की इक्वेशन हमने लिख दी है और अ करंट कंट्रोल करंट सोर्स। तो दोनों चीज़ों में हम ये देख सकते हैं कि स्मॉल सिग्नल ऑपरेशन में फिर आप करंट IE को भी कैलकुलेट कर सकते हैं और करंट IC दैट इज़ कलेक्टर करंट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें अगर IB की वैल्यू पता है तो बीटा के साथ हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर स्मॉल इनफ सिग्नल्स अप्रॉक्सीमेट एक्सपोनेंशियल कर्व विद अ लीनियर लाइन। तो जब आपके सिग्नल्स बहुत हों तो चूँकि हम देख रहे हैं कि हमारी इमिटर करंट में एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी आ रहा है, तो लेक्चर 22 में मैंने बताया था कि अगर हम स्मॉल सिग्नल लें यानी एम्पलीट्यूड उसका लेस देन जो मैंने एक कंडीशन लिखी हुई है फॉर स्मॉल सिग्नल मैग्नीट्यूड वी कैन यूज़ अ स्मॉल सिग्नल अप्रॉक्सीमेशन। अ स्मॉल सिग्नल अप्रॉक्सीमेशन क्या होती है कि आपकी करंट्स नॉर्मली एक्सपोनेंशियली वेरी करती हैं वोल्टेज के साथ। इनपुट सिग्नल में VBE वोल्टेज के साथ आपकी करंट्स एक्सपोनेंशियली वेरी करती हैं। तो आप इसको टेलर सीरीज़ के साथ, चूँकि सिग्नल की वैल्यू कम है, VBE की वैल्यू कम है, तो आप इसको एक लीनियर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड दैट इज़ व्हाट आई एम राइटिंग फॉर अ स्मॉल इनफ सिग्नल, दैट इज़ व्हेन द सिग्नल इज़ स्मॉल ऑफ द ऑर्डर ऑफ लेट्स से 10 मिलीवोल्ट, we can approximate the exponential factor by a linear line। तो उसको अब मैंने इस चीज़ को मैं एक हाइब्रिड पाई मॉडल की फॉर्म में भी हम यूज़ कर सकते हैं इन स्मॉल सिग्नल अप्रॉक्सीमेशंस को। जैसे मैंने ये पहले आपको दिखाया कि ये ब्लू बॉक्स में आपका एक कंप्लीट एम्पलीफायर सर्किट है जिसमें कि वोल्टेज इनपुट सर्किट में VBE वोल्टेज आपकी दोनों इसमें मौजूद हैं। इस सुपरपोजिशन ऑफ द AC एज वेल एज DC कंपोनेंट एंड ऑन द राइट हैंड साइड एंड AC सिग्नल ओनली, क्योंकि हमने DC को उसमें से शॉर्ट सर्किट करके एलिमिनेट किया हुआ है। इसको हम हाइब्रिड पाई मॉडल भी कहते हैं फॉर द बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एंड आई हैव रीड्रॉन दिस सर्किट अगेन। द हाइब्रिड पाई दैट इज द स्मॉल सिग्नल मॉडल इज द इंट्रिंसिक लो फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। The small signal parameters are controlled by the Q point and are independent of the geometry of the bipolar junction transistor। तो अब इस स्मॉल सिग्नल मॉडल को या स्मॉल सिग्नल अप्रॉक्सीमेशन लगा के जो हम एनालिसिस कर रहे हैं AC पार्ट ऑफ द एम्पलीफायर एनालिसिस को, उसको मैं हाइब्रिड पाई मॉडल की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकती हूँ, जिसके 2 पॉइंट डेफिनेशन सिंपली यही है कि हमें Q पॉइंट जो स्मॉल सिग्नल की ऑपरेशन है बेसिकली वो Q पॉइंट से ही कंट्रोल हो रहा है और Q पॉइंट आप DC एनालिसिस से ट्रांजिस्टर की इस्टेब्लिश करते हैं। सो इन एनी ऑपरेशन ऑफ द एम्पलीफायर सर्किट द Q पॉइंट इज द स्टार्टिंग point for the analysis of any operation of the amplifier circuit। तो Q point मगर निकलता है DC analysis से। So having done that, we can rewrite the equations जो हमने हमने lecture 22 में भी discuss की थी कि चूंकि आपके पैरामीटर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक इनपुट IV कैरेक्टरिस्टिक के पैरामीटर से आपको IB और VBE मिल रहा था
और IB से फिर आप कंट्रोल कर रहे हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, IV कैरेक्टरिस्टिक के पैरामीटर्स नेमली IC एंड VCE। तो आपकी जो ट्रांस कंडक्टेंस है वो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इस फॉर्म में। और यहाँ भी आप देखिए कि द फैक्टर द पैरामीटर GM, द ट्रांस कंडक्टेंस पैरामीटर इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्योंकि आपके डिनोमिनेटर में VT आ रहा है एंड VT इज द थर्मल वोल्टेज। इसी तरह हम इस सर्किट की एम्पलीफायर, स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर सर्किट की बेस रेजिस्टेंस R pi भी कैलकुलेट कर सकते हैं एंड अगेन द एक्सप्रेशन हैज बीन लिस्टेड। और आउटपुट रेजिस्टेंस इन द कलेक्टर एमिटर जंक्शन इन द कलेक्टर एमिटर लूप हैज आल्सो बीन लिस्टेड। चूंकि हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करके IC और VCE को कैलकुलेट करते हैं, तो जैसे मैंने पहले किसी लेक्चर में बताया था कि अगर आप बहुत हाई इनफ वैल्यूज़ रिवर्स बायस की लगाएं तो वहाँ पे फिर आपके एक लीनियरिटी आपकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की ख़त्म हो जाती है एंड देयर इज़ अ ट्रेंड दैट कर्व्स, आउटपुट कर्व्स, कलेक्टर करंट की कर्व्स जो हैं, जो लीनियर होने के बजाय वो फिर अपवर्ड स्लोप होना शुरू हो जाती हैं। एंड दैट particular voltage at which the linearity departs and the collector currents curve start to have a definite slope is known as the early voltage। और उस early voltage को हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ वो roughly about NPN ट्रांजिस्टर के लिए that value comes out to be about 100 वोल्ट, और ये नेगेटिव वैल्यू होगी क्योंकि हम रिवर्स बायस कर रहे हैं ट्रांजिस्टर को। उसी चीज़ की रिप्रेजेंटेशन इन अ रादर कलरफुल मैनर, ताकि आपको ये स्लाइड देख के और अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो आपके जो लेफ्ट हैंड साइड पे ब्लू बॉक्स है, ये आपकी ओरिजिनल एम्पलीफायर सर्किट है। जो आपके राइट हैंड साइड पे ब्लू बॉक्स है वो हमारी इक्विवेलेंट सर्किट है फॉर स्मॉल सिग्नल एनालिसिस, ट्रांस कंडक्टेंस एंड आउटपुट सर्किट की रेजिस्टेंस R pi भी मैंने दोबारा लिस्ट कर दी है। Again, some explanation about the hybrid pi model। ये इसी राइट हैंड साइड पे सर्किट A को मैंने रिप्रोड्यूस किया है दोबारा, because I would like to emphasize about one point। And what is that single point? An equivalent circuit model for the bipolar junction transistor is shown in figure A। This model represents the bipolar transistor as a voltage controlled current source, a trans conductance amplifier, and explicitly includes the input resistance looking into the base and termed as R pi। तो ये वो पॉइंट है जिसको मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर सर्किट, कि आपके इनपुट लूप में जो पैरामीटर्स हैं वो एक्चुअली कंट्रोल कर रहे हैं आपके आउटपुट सर्किट में करंट्स और वेरियस पैरामीटर्स को। तो इसलिए हम इसको ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर और वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स कह रहे हैं, क्योंकि बेसिकली आप AC सिग्नल को जब चेंज करते हैं या DC बायस सोर्स को जब चेंज करते हैं, वन ऑफ द टू, क्योंकि सुपरपोजिशन है ना आपकी टोटल वोल्टेज की इनपुट सिग्नल में, इस ट्रांसपेरेंसी में भी, स्लाइड में भी आपको नज़र आ रहा है। जो सिंबल मैंने लिखा हुआ है वो टोटल वोल्टेज का है। इट कंटेन्स द DC कंपोनेंट एज वेल एज द AC कंपोनेंट। तो आप दोनों में से अगर वेरिएशन करते हैं, चाहे आप DC बायस की वेरिएशन करें, इंक्रीज या डिक्रीज करें, या आप AC सिग्नल को इंक्रीज या डिक्रीज करें, इसका असर जाके आपको कलेक्टर की करंट और कलेक्टर एमिटर वोल्टेज पे नजर आएगा। सो इन दैट रिस्पेक्ट वी से दैट दिस इज अ ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर बिकॉज द वोल्टेज इज कंट्रोल्ड इन द इनपुट सर्किट, और इनपुट सर्किट की वोल्टेज कंट्रोल से आप करंट को कंट्रोल कर रहे हैं। दैट्स व्हाई आई हैव reproduced this slide separately so that you know what is happening in a small signal analysis of a bipolar junction transistor used as an amplifier circuit। उन्हीं चीज़ों को मैं फिर दोबारा हाईलाइट कर रही हूँ कि small signal equivalent circuits of the figure that I had mentioned earlier model the operation of the bipolar junction transistor at a given bias point। जाहिर है ये चीज़ हम कितनी दफ़ा रिपीट कर चुके हैं कि आप Q पॉइंट इस्टेब्लिश करना तो हमारी फर्स्ट
स्टेप है इन द एनालिसिस ऑफ द एम्पलीफायर ऑपरेशन, कि जब आप Q पॉइंट निकालेंगे तो आपका IB भी इस्टेब्लिश हो जाएगा, आपका IC भी इस्टेब्लिश हो जाएगा और आपका VCE भी इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो वंस यू हैव सिलेक्टेड एन अप्रोप्रिएट Q पॉइंट, अब उसके ऊपर आप सुपरपोजिशन कर रहे हैं अपने AC सिग्नल। This should be obvious from the fact that the model parameters GM and R pi depend on the value of the DC bias current IC as has been shown in the circuit. Finally, although the models have been developed for an NPN transistor, they apply the same treatment, the same analysis apply to PNP transistors as well. सिर्फ एक चीज़ के साथ जो मैं रिमार्क करूं कि आपके करंट कंपोनेंट्स डिफरेंट होंगे, क्योंकि अब आपकी NPN ट्रांजिस्टर में इट वाज द इलेक्ट्रॉन करंट, द इलेक्ट्रॉन करंट कंपोनेंट वाज द डोमिनेंट पार्ट इन द इमिटर करंट, जबकि PNP ट्रांजिस्टर में इट विल बी द होल करंट विच विल बी डोमिनेंट, विच स्टार्ट्स फ्रॉम द इमिटर. T model is a slight variation again of the hybrid pi model. In this case, we replace the bipolar transistor with the T equivalent circuit. Why? Because the base is now grounded and more convenient than the hybrid pi model. And जब आप base को ground कर देते हैं, common emitter configuration में हमने emitter को ground किया हुआ था, लिहाजा आपकी इनपुट करंट जो थी वो बेस करंट थी और आपकी आउटपुट करंट जो थी वो कलेक्टर करंट थी. तो आपका बीटा जो था, दैट इज द गेन ऑफ द करंट बीटा इन द एम्पलीफायर सर्किट वाज कैलकुलेटेड फ्रॉम द रेशियो ऑफ द कलेक्टर टू बेस करंट. इन द टी मॉडल, चूँकि हमने बेस को अप ग्राउंड किया हुआ है, तो हमारा जो करंट गेन फैक्टर है दैट इज द रेशियो ऑफ IC एंड IE, एंड ऑब्वियसली इट विल बी लेस देन 1, and typical alpha value that we have chosen is 0.99. और इस पर्टिकुलर सर्किट में न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जब हम देंगे तो 25 मिली वोल्ट है आपकी थर्मल वोल्टेज की वैल्यू, और इसको आप अल्फ़ा के साथ कैलकुलेट करके हम इस रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं. So this is the reproduction of the T model again, the total circuit and the equivalent circuit, and both the resistance RE across the emitter as well as the base have been redrawn again. Now we can augment the hybrid pi model and write down the output resistance relationship, and we can calculate the resistance in the output circuit RO, which is a ratio of the incremental value of the collector current to the output current, and for a given, of course, constant value of the input signal value, total input signal value in the amplifier circuit. And that's how we can calculate the resistance. But we have to keep in mind that output resistance represents the early effect, कि ये वो resistance है जिस पे जाके आपके कर्व्स में, कलेक्टर करंट की कर्व्स में स्लोप इन्हांस हो जाएगा. बाय द वे, द अर्ली इफेक्ट जैसे मैंने पहले आपको बताया था, इसको बेस विड्थ मॉड्यूलेशन से भी डिफाइन करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप रिवर्स बायस जंक्शन को बढ़ाते हैं आपकी डिप्लीशन रीजन भी बढ़ती जाती है, और जब डिप्लीशन रीजन बेस कलेक्टर जंक्शन में बढ़ती है तो आपका न्यूट्रल बेस विड्थ नैरो होता जा रहा है. तो उस मुनासबत से हमने ये टर्म बेस विड्थ मॉड्यूलेशन को यूज़ किया है. अब मैं आपको एक या दो एग्जांपल्स दिखाती हूँ ताकि आज के लेक्चर को हम कम्प्लीटली एंड तक ला सकें, किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक ला सकें. तो मैंने पहली एग्जांपल चूज़ की है DC एनालिसिस की, जो हमने शुरू में बताया था कि एम्पलीफायर सर्किट में पहले आप DC एनालिसिस करते हैं बाय अस्यूमिंग दैट द AC हैज़ बीन शॉर्ट सर्किटेड, AC वोल्टेजेस हैव बीन शॉर्ट सर्किटेड, और फिर AC एनालिसिस में हम अस्यूम करते हैं कि DC वोल्टेजेस हैव बीन शॉर्ट सर्किटेड. सो लेट्स परफॉर्म द DC एनालिसिस इन द फर्स्ट स्टेज. तो DC एनालिसिस में सबसे पहले क्या चीज़ करनी होती है, जैसे हमने कई दफ़ा जिक्र किया तमाम लेक्चर्स में, कि आपके एम्पलीफायर सर्किट का ऑपरेशन
डिपेंड करता है ऑन अ प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द क्यू पॉइंट. एंड व्हाट इज अ क्यू पॉइंट? इट्स वैल्यूज ऑफ IE, IB एंड IC एक्सेट्रा. इस केस में आप देख रहे हैं कि ये एक कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, लिहाजा आपके जो जैसा मैंने पहले कहा कि डिपेंडिंग कि आपका ट्रांजिस्टर किस मोड में बायस किया हुआ है, आपके 3 कंपोनेंट्स के सिंबल डिफरेंट होंगे. चूँकि इस केस में आप देख सकते हैं दिस इज़ अ PNP ट्रांजिस्टर और आपने बेस को कॉमन किया हुआ है, तो इमिटर करंट हम इसी तरह निकाल सकते हैं उन रिलेशन से जो मैंने आपको शुरू में दिए थे. और फिर बीटा और अल्फ़ा की वैल्यू, एक स्टैंडर्ड वैल्यू हम ले लेते हैं जो कि तमाम ट्रांजिस्टर्स की ये डेटा शीट्स में अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ लिखी हुई होती हैं, बट फॉर मोस्ट ऑफ दी ऑपरेशन के लिए वी चूज़ एन एवरेज वैल्यू ऑफ बीटा about 100 and we choose an average value of alpha which is 0.99. तो ये वैल्यूज़ जब हम चूज़ करें कलेक्टर सर्किट में, आउटपुट सर्किट में, द कलेक्टर करंट एंड द कलेक्टर वोल्टेज VC, वोल्टेज ड्रॉप इन द कलेक्टर बेस सर्किट आपकी निकल आएंगी, वैल्यूज़ निकल आएंगी. तो ये वैल्यूज़ हैं. VCB इज़ -5.4 क्योंकि बेस बायस किया, बेस ग्राउंडेड है, कॉमन है इस कॉन्फ़िगरेशन में. So the transistor is in the active maximum signal swing and the transistor is in this case active. Active का मतलब है कि हम active linear region, active या linear region में output characteristic के perform कर रहे हैं इसका operation. लेकिन जो maximum swing है कि आपकी कितनी amplification हो सकती है ट्रांजिस्टर में, वो मैंने कई बार explain किया है कि वो आपकी बायस वोल्टेज पे डिपेंड करेगी. और जब हम बायस वोल्टेज कहते हैं तो इसमें दोनों शामिल होती हैं, AC एज वेल एज DC. सो यू हैव टू कीप द सम ऑफ द टू सच दैट यू गेट एन अनक्लिप्ड, दैट इज अनडिस्टॉर्टेड आउटपुट सिग्नल. अब ये दूसरी एग्जांपल है स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट की, कि अब मैं अगर आपका वोल्टेज गेन यानी V और V आउटपुट को कैलकुलेट कर लूँ और अलाउएबल सिग्नल का मैग्नीट्यूड कितना हम अगर निकाल सकते हैं, तो VBE और VI दैट इज़ द इनपुट वोल्टेज जिसको VBE मैं कहती हूँ फॉर स्मॉल सिग्नल लिमिट, जो मैंने पहले दी आपको बताया था अबाउट 10 मिलीवोल्ट्स लें तो आपकी VCE निकल आती है 1.83 वोल्ट्स इन दिस फ्रॉम द प्रीवियस एग्जांपल. ये इसी एग्जांपल का पहले मैंने इस सर्किट का पहले मैंने DC एनालिसिस किया, वहाँ से मैंने IE, IC और VCE निकाली, फिर इसी सिग्नल का अब मैंने AC एनालिसिस किया और वहाँ से वैल्यूज़ निकाल ली. तो इस तरह हमारा एनालिसिस कंप्लीट हुआ. अब इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं. एंड नाउ आई हैव शोन यू द इक्विवेलेंट सर्किट पाई मॉडल, और वहाँ से आपकी द रेजिस्टेंस in the emitter circuit and the transconductance factor Gm and the base resistance R pi, ये भी हमने तीनों कैलकुलेट कर दिए from the relationship that we had derived in lecture number 22 in the last lecture. ये देखिए, I go back again. तो इस तरह एक एग्जाम्पल को चूज़ करके जो सर्किट मैंने आपको दिया हुआ है, इसका पहले हमने 3 स्टेप में ऑपरेशन या एनालिसिस परफॉर्म किया कि पहले हमने DC एनालिसिस किया, फिर हमने AC यानी स्मॉल सिग्नल एनालिसिस किया, एंड देन वी हैड कैलकुलेटेड द 3 पैरामीटर व्हिच कंप्लीटली कैरेक्टराइज हाइब्रिड पाई मॉडल ऑफ द ट्रांजिस्टर्स. तो अब मैं अपनी आखिरी स्लाइड की तरफ आती हूँ. जैसे मैंने पहले कहा कि हमने बेस बनाया था, रेफरेंस बनाया था एम्पलीफायर एनालिसिस के लिए NPN ट्रांजिस्टर को, लेकिन अगर हमारे पास PNP ट्रांजिस्टर हो तो मोरलेस एनालिसिस वुड बी सिमिलर, सिवाय जो आपके करंट कंपोनेंट्स हैं उनके लेबल डिफरेंट होंगे. तो मॉडल्स डिराइव फ्रॉम द NPN टाइप ट्रांजिस्टर अप्लाई इक्वली वेल टू PNP ट्रांजिस्टर विद नो चेंजेस ऑफ पोलैरिटीज, क्योंकि जाहिर है आपकी अगर वो चेंज होंगी, बायसिंग आपका ट्रांजिस्टर अगर चेंज होगा तो आपकी आपको जो चीज़ एक जहन में रखनी होगी वो सिर्फ ये कि इमिटर बेस जंक्शन शुड बी फॉरवर्ड बायस्ड एंड द बेस कलेक्टर जंक्शन शुड बी रिवर्स बायस्ड.
Models derived from NPN type transistor apply equally well to PNP transistors with no changes of polarities because the small signal cannot change the bias conditions. Small signal models are independent of polarities. तो ये अप्लाई कर रहा है सिर्फ AC सिग्नल के लिए कि अगर आपने NPN एम्पलीफायर के बजाय अब PNP एम्पलीफायर से अपने सर्किट को डिज़ाइन किया है, डू नॉट चेंज द पोलैरिटीज़ ऑफ द AC सिग्नल, क्योंकि आपकी जो बेसिक ऑपरेशन है वो तो DC सोर्स इस्टेब्लिश कर रहा है और DC सोर्स जो है वो डिटरमिन करेगा कि आपका इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो और DC और ट्रांजिस्टर आपका डिटरमिन करेगा कि आपका बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस हो। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि AC की पोलैरिटीज़ डिपेंड नहीं करती, क्योंकि बाइसिंग जो है वो तो आपकी DC पोलैरिटीज़ से हो रही होती है। Thus we say that small signal models are independent of polarities. No matter what the configuration is, model is unique. Which one to be selected is only determined by the simplest analysis. So in the end we conclude कि आप DC एनालिसिस एंड AC या सीधा सादा एम्पलीफायर सर्किट एनालिसिस के लिए दो स्टेप में आप एनालिसिस हमने अब तक आज के लेक्चर में किया कि पहले हमने DC एनालिसिस किया, फिर हमने AC एनालिसिस किया और वहाँ से फिर हमने एक हाइब्रिड पाई मॉडल इवॉल्व किया, इक्विवेलेंट सर्किट बनाया। तो एंड में हम कह रहे हैं कि नो मैटर व्हाट द कॉन्फ़िगरेशन इज़, कि आप कॉमन इमिटर लें या कॉमन बेस लें, NPN ट्रांजिस्टर लें या PNP ट्रांजिस्टर लें, which one is to be selected is only determined by the simplest analysis. तो जाहिर है आपको ऐसी कॉन्फ़िगरेशन या आपको ऐसा इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल सिलेक्ट करना होगा कि जो आपके DC एनालिसिस या AC एनालिसिस को सिंप्लीफाई करे, बिकॉज इट विल बी इलॉजिकल to design or use a model which complicates your analysis of the amplifier design. In the end, I would present a summary कि देखिए एक हमने simple transistor show किया है on the very top of the slide कि आपका एक simple NPN transistor मैंने लिया है, bipolar junction transistor, जिसमें मैंने respective DC biasing दिखाई हुई है। उसके बाद मैंने उसका एक इक्विवेलेंट उसके बाद मैंने उसका एक एम्पलीफायर सर्किट डिज़ाइन किया ब्लू बॉक्स में, ऑन द टॉप ब्लू बॉक्स, जहां अब मैंने आपको टोटल AC वोल्टेज VBE दिखाई है, विच इज़ अ सुपरपोजिशन ऑफ AC एज वेल एज DC। फिर नीचे आप आइए एट द लोअर एंड ऑफ स्लाइड नंबर 32, आई से दैट DC मॉडल में अब हमने सिर्फ DC को रखा है, AC को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया है। यूज़ अ सिंपल कांस्टेंट VBE मॉडल एंड वी आर अस्यूमिंग कि VBE जो आपकी DC वोल्टेज है वो इतनी होनी चाहिए कि 0.7 वोल्ट होनी चाहिए। ये मैंने शुरू में भी रिमार्क किया था कि आपको VBE को इतना रखना है, नी वोल्टेज से ज़्यादा रखना है, और चूँकि मैंने सिलिकॉन को मिसाल ली है तो इट शुड बी सच दैट योर ट्रांजिस्टर इज़ इन दी ऑन मोड। तो ये एक इक्विवेलेंट सर्किट्स की एक बहुत सिंपल समरी मैंने बनाई है, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक ऑपरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर एज अ करंट डिवाइस, देन making an on the right side making an amplifier circuit, and then at the lower half of the slide I'm trying to use it as a DC model and then converting it into a simple hybrid pi model. So thank you so much, and I hope you appreciate this simple working of a transistor from current device to an amplifier circuit, and then we can design the amplifier circuit in a way that we understand how to analyze it for a proper operation of the circuit in which you get an undistorted, that is unclipped output in the output circuit. Thank you so much, and we shall come with a new topic again for the transistor, bipolar junction transistors, in which we would study a different feature
because so far, if you remember in my lecture, we have been using or referring as a small frequency, though we did not go explicitly into the details of the frequencies, but that we will do in our one of the next lectures. Thank you so much, and Allah Hafiz.